Everyone. In this series of lectures, we'll be discussing some MCQs which will be essential, or you can say that these MCQs are very helpful for your upcoming AMRS and NVS exams. So in my previous video I discussed about some MCQs. I hope you have seen that video. Now in this video also I will be discussing some important MCQs from the diversity of living world. Okay. Now the first question here, it is given, which one of the following statement is incorrect? Okay, so the first one, it is told that in the first option it is given, indica, tuberosum and leo represent the specific epithet. Okay, it is correct, because indica, like Mangifera indica, Solanum tuberosum, Panthera leo, these are all the specific epithets. Next it is given Solanum, Mangifera and Homo, it represents the generic name. That is also correct. Monocotyledony and dicotyledony are two classes of division angiospermy. Okay, you know, in angiosperm we get the monocot and dicot. That is also correct. So what will be the wrong statement? The wrong statement is this one, that phylum Chordata is the largest phylum of kingdom Animalia. No, phylum Chordata, it is not the largest phylum. The largest phylum, it is Arthropoda. Okay, Arthropoda, that means the insects, Arthropoda. This is the largest phylum of kingdom Animalia. So this is the wrong statement, so it will be the correct option. Okay, now the next question, move to the next question. The next question, it is given, the name of a plant order ends with, plant order बोला है इसमें. Okay, so plant order, it generally ends with ALES, Ales. Okay, Ales, plant order. For example, Sapindalis, Poales. Okay, so Ales will be the correct answer. Now the next question, it is given. Now the next question here, it is given, in biological terminology, a group of similar organisms which are capable of interbreeding and producing fertile offspring, that is called. ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. सिमिलर है और उसके बीच में क्या हो रहा है, इंटरब्रीडिंग हो रहा है. सो व्हाट विल बी दैट कॉल्ड, दिस विल बी कॉल्ड स्पीसीज. इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट. इट इज गिवन बाय अर्नस्ट मायर. क्लियर. नाउ द next question, it is given, which of the following suffixes used for units of classification in plants indicates a taxonomic category of family. So if you write any family of any plant, so which of the following suffixes that will you use? So it will be ACEAE. Clear. What will be the correct answer? The correct answer will be ACEAE. For example, suppose a family, I am writing Poaceae, Poaceae. So ACEAE, it is used. Fabaceae, ACEAE. Solanaceae, Solanaceae, NACEAE. So ACEAE, this suffix, it is used for the family. Now the next question, it is given, match the entities in column 1 with column 2. So column 1, it is given Primata. देखो Primata क्या होता है, Primata एक ऑर्डर है. So Primata के अंदर कौन होता है, Human. Okay, we are primates. Clear. Now Diptera is given. Diptera means ये फ्लाई, मतलब ये आर्थ्रोपोड के अंदर होता है. क्लियर. Diptera, हाउस फ्लाई. Sapindalis से मैंगो का ऑर्डर है. ठीक है, मैंगो, सैपिंडालिस. पोआलिस मतलब व्हीट. क्लियर, व्हीट, राइस. क्लियर, पोएलिस. कार्निवोरा, ये होता है डॉग का. क्लियर. तो प्राइमेटा, दैट मीन्स A5. तो हमको ढूंढना है A5 कहाँ है. देखो इधर भी A5 है, इधर भी A5 है, इधर भी A5 है. क्लियर. A2 दिया हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा, A5. सेकेंड डिप्टेरा मीन्स हाउस फ्लाई, दैट मीन्स B4. अब देखो B4 कहाँ है, इधर भी B4 है. क्लियर. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट के सैपिंडालिस मैंगो मतलब C3,
तो इधर भी C3 है, इधर भी C3 है, तो ए वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ डी के साथ क्या आ जा रहा है, 45 मतलब व्हीट मतलब D2। अब D2 किधर है, इधर D2 है, क्लियर। एंड E1 ये E1 है, क्लियर। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दिस ऑप्शन, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ next question it is given, as we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy the number of common characteristics। अब देखो species level में species for example suppose if I write lion, it is a species, right? So in a species level suppose there are two lions, okay? तो ये जो लायन है इसके साथ इसका सिमिलरिटी क्या होगा, हाइस्ट होगा ना, क्लियर। हाइस्ट सिमिलरिटी तो मेरे को स्पीसीज लेवल में मिलेगा, क्लियर। अब स्पीसीज से जितना हम ऊपर जाएंगे ना किंगडम तक, किंगडम स्पीसीज से हम कहाँ गए, किंगडम। अब किंगडम फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट एनिमेलिया, एनिमेलिया इज़ अ किंगडम। अब एनिमेलिया के अंदर बहुत सारा एनिमल्स होता है, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर। फॉर एग्जांपल एक एनिमेलिया में मेरे को फ्लाई भी मिलेगा, ह्यूमन भी मिलेगा। अब फ्लाई और ह्यूमन के बीच में जो सिमिलरिटी है वो बहुत लो है, इज इट क्लियर। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम, ठीक है, सो एज वी ग्रो फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम, सो व्हाट विल हैपन, द सिमिलरिटी दैट विल डिक्रीज, ठीक है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट विल डिक्रीज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन देयर, the taxonomic unit phylum in the classification of animals is equivalent to which hierarchical level in classification of plants। अगर हम एनिमल के लिए फाइलम यूज़ करते हैं तो प्लांट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लांट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिवीजन, ठीक है। सो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सो किंगडम, फाइलम और डिवीजन। सो प्लांट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिवीजन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हेयर, more suitable term used for all these dog, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, what are these? इसको हम बोलते हैं टैक्सा। क्या बोलते हैं इसको, टैक्सा बोलते हैं, ठीक है। टैक्सा इट इज़ इन प्लूरल, और सिंगुलर में हम क्या बोलते हैं इसको, सिंगुलर में इसको हम बोलते हैं टैक्सन, ठीक है। तो मैमल एक टैक्सन है, ठीक है, दिस आर टैक्सा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज। तो टैक्सोनॉमी का कुछ स्टेप्स होता है, क्या क्या होता है, देखो फर्स्ट तो होता है उसका कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। सपोज यू हैव फाउंड अ न्यू, अब एक प्लांट आपको देखा, ओके, सपोज यू थिंक दैट दिस प्लांट इट इज़ नॉट येट डिस्कवर्ड, ठीक है, ये अभी तक डिस्कवर किसी ने नहीं किया है। तो अब ये प्लांट क्या है, इट इज़ अननोन टू यू। तो पहले आप क्या करोगे इस प्लांट का, अब मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सपोज इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट विल यू डू, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसका डिस्क्रिप्शन दोगे, ठीक है। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर फाइंडिंग हेयर अ स्टेम, यू कैन सी द रूट्स ऑल्सो, ओके। नाउ लीव्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, clear, leaves are also there, you can see the flower, so that means it is a plant। so पहले आप क्या करोगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अननोन है तुम्हारे लिए, सो फर्स्ट यू विल डिस्क्राइब इट, ओके, जिसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद होता है उसका आइडेंटिफिकेशन, देन होता है उसका क्लासिफिकेशन, देन होता है उसका नोमेनक्लेचर और गिविंग नेम। सो फर्स्ट स्टेप इन द टैक्सोनॉमी इट विल बी डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसको कैरेक्टराइजेशन भी बोलते हैं, ओके। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी। नाउ the next question is given here, which of the following statements regarding the universal rules of biological nomenclature, in previous video I also have given some MCQs, clear, that on the basis of the बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर का जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअली, तो उसका कुछ रूल्स है। तो इस रूल्स में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, देखो फर्स्ट क्या बोला है, बायोलॉजिकल नेम्स आर आइदर डेराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज और आर लैटिनाइज। ये तो मेरे को सही लग रहा है, करेक्ट ही है ये। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जेनस, ठीक है, व्हाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पीसीज, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं इसको। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, ये भी ठीक है, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन।
द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ये तो गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। अब देखो ये जो इंडिका है ये स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है, तो ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, बट हियर इट इज रिटन कैपिटल लेटर, सो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये हो गया गलत। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन, ठीक है, द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस कैसा होता है, देखो मैं एक लिखता हूँ, किंगडम फर्स्ट होता है किंगडम, ठीक है, किंगडम, उसके बाद क्या होता है फाइलम, फाइलम और डिवीजन, ठीक है, फाइलम इट इज़ फॉर एनिमल एंड डिवीजन इट इज़ फॉर प्लांट। किंगडम, फाइलम और डिवीजन, उसके बाद होता है क्लास, उसके बाद होता है ऑर्डर, उसके बाद होता है फैमिली, उसके बाद होता है जेनस, उसके बाद होता है स्पीसीज, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। अब इसमें देखो कहाँ पर ये मिल रहा है, देखो किंगडम, फाइलम और डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, उसके बाद आएगा क्लास, देखो ये वाला देखो डिवीजन, ओके, किंगडम नहीं दिया है, डिवीजन से स्टार्ट किया है, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ question number 32, it is given which of the following is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheet। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्बेरियम, क्या बोलते हैं इसको, हार्बेरियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन द हार्बेरियम शीट्स कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट। देखो हार्बेरियम शीट जो होता है ऐसा शीट होता है जिस शीट में क्या चिपका होता है, ये तुम्हारा ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन है, इधर पर क्या होता है लेबल, तो इस लेबल में क्या क्या बोला है, द हार्बेरियम शीट्स कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, ऑल द अबव। तो अब देखो डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन ये भी लिखा होता है, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम ये भी लिखा होता है, फैमिली भी होता है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें देखो कौन सा फैमिली का प्लांट है ये भी होता है, सो आई थिंक ये जो है ये ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज एवरीथिंग विल बी रिटन हेयर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स। ये तो ड्राइड, ये तो प्लांट्स को मार के इसको सुखा के इधर हार्बेरियम शीट में चिपका जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। तो लिविंग प्लांट्स को जहाँ पर रखते हैं उसको हम बोलते हैं बोटानिकल गार्डन, क्या बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड द बोटानिकल गार्डन, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन लेबल ऑफ प्लांट इन बोटानिकल गार्डन्स नॉट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट। अब बोटानिकल जो गार्डन होता है उसमें लिविंग प्लांट होता है तो उसमें क्या यूज़ नहीं होता है, ठीक है, उसमें लेवल में क्या नहीं होता है, तो बोटानिकल नेम तो होता है, साइंटिफिक नेम भी होता है, फैमिली नेम भी होता है, तो कलेक्टर्स नेम इट इज़ नॉट देयर, ठीक है, क्या नहीं होता है, कलेक्टर्स नेम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए collections of preserved plant and animal species for study and reference, ठीक है। तो which of the following is a collection of preserved plant and as well as क्या बोला है animal species भी है। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूजियम, क्या बोलते हैं, म्यूजियम। तो म्यूजियम में प्लांट प्रिजर्व करके रखा होता है, उसके साथ एनिमल स्पेसिमेंस भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग बोटानिकल गार्डन। अब देखो क्या बोला है, द फेमस बोटानिकल गार्डन सिचुएटेड एट क्यू, तो ये तो सही है, नॉट ट्रू बोला है। नेक्स्ट बोला है इंडियन बोटानिकल गार्डन सिचुएटेड एट हावड़ा, ठीक है, ये भी है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है, ये भी ठीक है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट हावड़ा, ये गलत है, ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन बोला है, इसमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग म्यूजियम। अब म्यूजियम के लिए कौन सा ट्रू है, देखो म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू, ठीक है, एनिमल का स्केलेटन होता है म्यूजियम में। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड
इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, ठीक है, ये भी सही है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन, ठीक है, तो एज अ ड्राई स्पेसिमेन भी ये प्रिजर्व किया जाता है म्यूजियम में। सो ऑल आर करेक्ट, सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द above, ठीक है, सो दिस विल बी ऑल ऑफ द above, अंडरस्टूड। सो आज के लिए इतना ही। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड सम MCQs, देयर आर सम मोर MCQs आर देयर that will be discussed in the next video. Okay, so in this series of video I'll be uploading some videos where I'll discuss the MCQs from various chapters of the whatever is there in your syllabus. Okay, everything will be discussed gradually. Okay, so thank you and study hard, because you know the exams this year it will be conducted NVS and EMRS both. Okay, thank you so much.